Hi everyone, this is Jenish Koda here and welcome to our video of accounts. And today in this video, I'm going to teach you financial statement. That is chapter number 10 of account CBSE 11th standard. And we're going to start with sum number 3 in this particular video, which is given to us on page number 413. So students, before moving towards the sum, I would like to tell you guys that we are running some online and offline lectures of CBSE 11th standard, the entire commerce section. So if somewhere you're looking out for any online help, students, you can let us know. We're running this lectures are being paid lectures, but believe me, it is completely worth it. And yeah, so if you're looking for any one-to-one personal tuitions, you can let us know about it. Okay, thank you so much, students. So, and I also hope that you guys have already subscribed to our channel. यहाँ तक आ ही गए हो तो subscribe भी करके जाओ बच्चे लोग क्यों नहीं? और please like the video, share it with your friends. It's an amazing playlist, and you can go through. There are more videos on this particular section on our channel. Okay, so बच्चे लोग without wasting too much of time, let's start the sum now. और सम की शुरुआत करेंगे हम डायरेक्टली. सो द सम इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने सारे सम्स के द सम्स द फोटोज इज गिवन इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो इफ यू कैन नॉट सी समथिंग on the screen, you can go through that link and you can download a PDF also. Okay, chalo, that's great. Now let's start. Question number 3. The following balances has been extracted from the trial balance of Messrs. Runway Shine Limited. Prepare a trading account, profit loss account, and a balance sheet as on 31st March 2017. So students, in our question, they have given us trial balance and adjustments. What do we have to do? We have to make trading account, we have to make profit loss account, and a balance sheet. ठीक है, चलो सम को पहले डिस्कस करेंगे. काफी आसान सम है. परचेस, बिकॉज मैंने तो ऑलरेडी रीड कर लिया. स्टूडेंट्स, परचेस कहाँ जाएगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. दैट्स नाइस. फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइन. चलो नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड इज बेसिकली, आप वहां पे चाहिए तो एसआर लिख दो, सेल्स रिटर्न. और सेल्स रिटर्न स्टूडेंट्स कहाँ जाता है? सेल्स रिटर्न इज लेस फ्रॉम सेल्स. अगर आपको पता होगा स्टूडेंट्स, सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? लेस फ्रॉम सेल्स. एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, आप लोग सेल्स में जाके टिक भी कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टू लीव वन लाइन ओवर देयर. वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा स्टूडेंट्स. कैश इन हैंड. Cash in hand is current asset, and cash at bank is also, though both are current asset. Wages जाएगा students. Wages is trading account, P&L. Next is printing and stationery, which goes to P&L account. Discount, P&L. Bad debts, P&L. Insurance, P&L. Investment is basically asset. Okay, debtors is current asset, और bill receivable भी current asset है. Postage and telegram students जाएगा P&L में. कमीशन, इंटरेस्ट, ओके, ये सब इंडायरेक्ट एक्सपेंस है. पीएनएल. अगर आपको नहीं पता स्टूडेंट्स, तो यू शुड वॉच द वीडियो ऑफ थ्योरी आल्सो, जिसमें मैंने एग्जैक्टली बताया कैसे हम बाइफरकेट करते हैं, कौन ट्रेडिंग में जाएगा, कौन पीएनएल में, कौन बैलेंस शीट, असेट और लायबिलिटी में. लाइटिंग चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस. कैरेज आउटवर्ड भी पीएनएल में. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है, बट कैरेज आउटवर्ड जाएगा स्टूडेंट्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है. और मोटरसाइकिल इज अ फिक्स असेट. ओके, एफ ए लिख रहा हूं, दैट मींस इट्स अ फिक्स असेट. ओके, आफ्टर दैट सेल्स अकाउंट स्टूडेंट्स, सेल्स में है, ट्रेडिंग में जाएगा. नाउ कैरेज आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, वहां पे पीआर लिख दो. और पीआर मतलब परचेज रिटर्न क्या होगा स्टूडेंट्स? लेस फ्रॉम परचेज होगा. एंड एट द सेम टाइम व्हाट यू कैन डू इज, आप परचेज में जाके टिक मार्क कर सकते हो. वहां पे एडजस्टमेंट है, जहां भी एडजस्टमेंट है वी आर डूइंग बेसिकली टिक मार्क. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरेस्ट रिसीव पीएनएल, डिस्काउंट रिसीव भी पीएनएल. क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, सीएल का मतलब होता है करंट लायबिलिटी. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, एंड कैपिटल विल आल्सो गो इन द लायबिलिटी सेक्शन. फाइन. That's nice. Moving forward now, ऑप्शंस आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. और यहाँ पे लिखा है फर्दर बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है. क्या लिखा है? फर्दर बैड डेब्ट्स 1000 रुपीज. स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स जब भी आएगा, क्या आएगा? उसका दो इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स. क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स. एंड उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? ऐड टू बैड डेब्ट्स. लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेब्ट्स. ठीक है, चलो आप लोग को चाहिए तो आप लोग टिक मार्क कर लो. कहाँ पे हमारा डेटर्स है? आप लोग डेटर्स में देखो स्टूडेंट्स, कितने, एक ही एडजस्टमेंट, तीन एडजस्टमेंट है, 1 2 3. तो बच्चे लोग, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको क्या करना है. अगर एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ेंगे, दो एडजस्टमेंट है 3 लाइन, और 3 एडजस्टमेंट है तो 5 लाइन. एक का 1, 2 का 3, 3 का 5. तो मैंने 3 टिक मार्क किए डेटर्स के ऊपर, बिकॉज वहां पे 3 एडजस्टमेंट है. बैड डेब्ट्स वर्ड दिया हुआ है क्या? लेट मी जस्ट चेक. बैड डेब्ट्स कहाँ गया? बैड डेब्ट्स, ओके, बैड डेब्ट्स वर्ड है स्टूडेंट्स. वहां पे आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना होगा, तो मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा व्हाट इज द फॉर्मूला. और सुन, डिस्काउंट ऑन डेटर्स में भी सेम वही होता है. पहले तो हम क्या करेंगे? डेटर्स से लेस करेंगे.
डेटर से लेस कर देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पीएनएल डेबिट में डाल देंगे, कहाँ डालेंगे, पीएनएल डेबिट साइड। फाइन। चलो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, चलो इन्वेस्टमेंट है तो चलो अभी इन्वेस्टमेंट को टिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टिक करना स्टूडेंट्स, टिक करेंगे इन्वेस्टमेंट को टिक करेंगे। ओके गाइस, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, मैंने बताया था स्टूडेंट्स, अगर कोई लड़का आउटस्टैंडिंग या लड़की आउटस्टैंडिंग हो तो स्टूडेंट्स उसमें आपका इंटरेस्ट ऐड होगा कि लेस होगा, यस डेफिनेटली ऐड होगा। तो बच्चे लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड भी ऐड होता है और इंटरेस्ट वर्ड भी हमेशा ऐड होता है, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे। एंड इट इज एन इनकम, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, असेट का बढ़ना इज एन इनकम, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, चलो ग्रेट। आफ्टर दैट वेजेस एंड इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अभी बताया था, आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट दोनों ऐड होता है, तो एक तो ऐड करेंगे। एंड लाइबिलिटी में लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्यों लाइबिलिटी में, बिकॉज ये वो खर्चा है जो पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब वेजेस पेंडिंग, तो वेजेस पे करना बाकी है, इंटरेस्ट पे करना बाकी है, दैट मीन्स वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई। चलो तो टिक करेंगे स्टूडेंट्स, कहाँ किसको टिक करेंगे, वेजेस को भी टिक करेंगे और इंटरेस्ट को भी टिक करेंगे। लेट मी जस्ट गो विद एंड ओके, वेजेस ओवर हियर और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ पर, इंटरेस्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसको भी टिक कर लो। आपको चाहिए तो ये इंटरेस्ट रिसिप्ट को भी टिक कर लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट आएगा वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें टिक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट एक्जैक्टली यू नो आपको कहाँ का लाइन छोड़नी है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू का कम होना, एक तो लेस फ्रॉम, वही मोटर कार से लेस करेंगे हम लोग, मोटर कार को मैं शॉर्ट फॉर्म भी नहीं दे सकता, लोग गलत समझेंगे। ओके और सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल डेबिट साइड, सो लेस फ्रॉम मोटर कार एंड पीएनएल डेबिट साइड। एंड लास्ट ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्लोजिंग स्टॉक के स्टूडेंट्स कॉमन है, आने वाला है, आप लोग रट लो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। सुपर्ब, द सम सिम्स टू बी रियली वेरी वेरी इजी टू मी। ठीक है, देख लेंगे आप लोग। क्या करेंगे, मैं एक बार टिक कर लेता हूँ जो जो चीज में एडजस्टमेंट है, मेरे पास एक बुक है उसमें मैं लिख लेता हूँ। ओके फाइन, ओके I'm going to rub this part, हमने पूरा सम डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्सेल शीट नाउ, जहां पर मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है आप लोग के लिए। अब यहाँ से शुरू करेंगे सम को, प्रॉपर्ली लाइन वाइज लाइन शुरू करना है स्टूडेंट्स। इफ यू डोंट हैव द क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक में ऑलरेडी क्वेश्चन पूरा डाल दिया है, आप वहां जाकर और आंसर भी इनफैक्ट डाल दिया है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। सबसे पहले परचेज दिया 1,50,000, सो आई एम स्टार्ट ओवर योर परचेज 1,50,000। अच्छा, जितनी चीजें मैंने स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर लिखी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, यू कैन ऑल्सो मेक दैट विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, ये सारी चीजें आप भी हर बार लिख सकते हो। बस ये ग्रॉस प्रॉफिट वाला निकाल देते, ग्रॉस प्रॉफिट कोई पक्का नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल ओवर हियर ऑन द लायबिलिटी साइड इज आल्सो फिक्स, आपको सबसे पहले ही लिखना है। ओके, ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपीज, वर्क्स। आफ्टर दैट वी हैव रिटर्न इनवर्ड 2,000, रिटर्न इनवर्ड इज बेसिकली माय सेल्स रिटर्न, आप लोग वहां पे रिटर्न इनवर्ड वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, आपको चाहिए तो। अगर वो लोग ने क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड दिया तो आप भी एक काम करो, रिटर्न इनवर्ड वर्ड लिख दो, आई डोंट माइंड, ठीक है। 2,000 माइनस करेंगे कैरेज इनवर्ड, अब यहाँ से शुरू करेंगे टू कैरेज इनवर्ड, और कैरेज इनवर्ड का अमाउंट दिया हुआ है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिलहाल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4,500, देयर इज नो एडजस्टमेंट, सो वी पुट इट ऑन द राइट साइड। दो कॉलम है, डिटेल कॉलम, अमाउंट कॉलम, हो सकता है आपने दोनों कॉलम का नाम अमाउंट कॉलम लिखा हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, यू पुट इट ऑन द राइट साइड व्हेन देयर इज नो एडजस्टमेंट। अभी कैश एंड कैश एट आएंगे। ओके चलो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इस वीडियो को इतनी जरूरत नहीं है फिलहाल, इसको साइड में रख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, कैश एंड कैश एट बैंक थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ऑनेस्टली इतना नीचे भी नहीं लिखना था, थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, कैश इन एंड कैश एट बैंक, लेट्स सी द अमाउंट 77,800, ओ माय गॉड परफेक्ट, ये तो बहुत ज्यादा है। Shit, चलिए ओके 77,800, और आफ्टर दैट नेक्स्ट 60,800, 60,800, 7,800, 6,800। ओके, वेजेस दिया 2,400, वेजेस में एडजस्टमेंट है, अब देखना बच्चे लोग, एडजस्टमेंट है, यू हैव टू राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 2,400। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है आपको हर बार स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एंड अमाउंट इज गिवन टू अस 4,500, अगेन 4,500। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट डिस्काउंट है 4,000 रुपीज, 400 रुपीज टू डिस्काउंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़, इसमें एडजस्टमेंट है क्योंकि डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया हुआ था मैं। चलो तो 400 रुपीज। बैड डेब्ट, बच्चे लोग अभी बैड डेब्ट का हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना है, सो आई एम गोइंग, प्रीवियस समय मैंने लिखा था स्टूडेंट्स, तो उसी को मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, आई होप यू गाइस डोंट माइंड। जहां भी एडजस्टमेंट हो, यू हैव टू लीव वन लाइन, देखो डिस्काउंट के नीचे मैंने एक लाइन छोड़ी है, ठीक है।
अब बेड डेप्स का पूरा फॉर्मूला आपके स्क्रीन के सामने स्टूडेंट्स, टू बेड डेप्स एड फर्दर बेड डेप्स एड न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी। फर्स्ट और लास्ट हमें कहां मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। तो देखो बेड डेप्स कोड हमें मिला है 1500 हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ठीक है। चलो ग्रेट, बाकी सारी चीजें आगे मिलेगी, डोंट वरी। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ओके, इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया हमें क्वेश्चन में? 2500। आफ्टर दैट नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट्स 32,000, जिसमें एडजस्टमेंट है तो मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट यूजुअली फिक्स एसेट और करंट एसेट के बीच में होता है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 32,000 रुपीज, जिसमें एडजस्टमेंट है फिलहाल, सो आई एम पुटिंग इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। डेटर्स है 53,000। ओके गाइस, डेटर्स आ गया है, ध्यान रखना है डेटर्स में 3 एडजस्टमेंट है, आपको कितनी लाइन छोड़नी है? आपको 5 लाइन छोड़नी है। सो डेटर्स है, अमाउंट दिया हुआ है डेटर्स का 53,000 रुपीज, 53,000। अमेजिंग गाइस। चलो साथ में बने रहना लास्ट तक। बिल रिसीवेबल, ओके 5 लाइंस, 1 2 3 4 5 लाइंस छोड़ के मैं अब लिख रहा हूँ बिल्स रिसीवेबल। ओके, और बिल रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20,000 रुपीज एज लिख देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अब हम लिख रहे हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आ जाएंगे। ओके, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है। पोस्टेज और टेलीग्राम का अमाउंट है, टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ, नो प्रॉब्लम, टेलीग्राफ लिखेंगे। अमाउंट है इंश्योरेंस में तो कोई अमाउंट नहीं है, 2,500 ये बाजू लिख रहा हूँ मैं। अब पोस्टेज और टेलीग्राफ में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 400 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट कमीशन है 200 रुपीज, टू कमीशन अमाउंट है, कमीशन का अमाउंट है 200 रुपीज। इंटरेस्ट दिया हुआ है, टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स 1,000 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट रिपेयर्स है, और एडजस्टमेंट हो, यू हैव टू लीव वन लाइन, याद से आपको एक लाइन छोड़ देनी है, 440 रुपीज। नेक्स्ट टू लाइटिंग चार्जेस, टू लाइटिंग चार्जेस अमाउंट है, लाइटिंग चार्जेस का अमाउंट कितना दिया क्वेश्चन में? 500 रुपीज। ओके, नो प्रॉब्लम। टू टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन, टू टेलीफोन चार्जेस, और अमाउंट है टेलीफोन चार्जेस का स्टूडेंट्स 100 रुपीज। एंड टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड 400 रुपीज, परफेक्ट। और उसके बाद नीचे स्टूडेंट्स दिया मोटर कार भी दिया हुआ है हमें एक। सो मोटर कार इज माय फिक्स असेट, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ उसको, मोटर कार को, मोटर कार, जिसमें एडजस्टमेंट है, और अमाउंट है 25,000 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ मोटर कार। चलो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डेबिट साइड कंप्लीट कर दिया पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस का। मूविंग फॉरवर्ड टू द राइट साइड नाउ, क्रेडिट साइड विद सेल्स 2.5 लाख रुपया सेल्स का। चलो, तो स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज 2.5 लाख माइनस 2,000 व्हिच कम्स टू अराउंड 2,48,000। परफेक्ट। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड इज एज गुड एज परचेज रिटर्न, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न आउटवर्ड 4,500 अमाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 4,500, एंड 1,50,000 माइनस 4,500 विल कम टू 1,45,500। ओके, 1,50,000 में से 4,500 गया, 1,45,500, परफेक्ट, वेरी गुड। इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है 3,500, सो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कंसिडर कर रहा हूँ 3,500 रुपीज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में दिया था तो उसका इंटरेस्ट यहीं पे ऐड कर दूंगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, इसमें तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 400 रुपीज है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स दिया हुआ 1,25,000, तो क्रेडिटर्स रैंडमली मैं कहीं भी नीचे लिख रहा हूँ, क्रेडिटर्स 1,25,000 रुपीज, नो एडजस्टमेंट एट ऑल। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल का अमाउंट है 6040 एंड लास्ट वी हैव कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट है 1 लाख रुपया, बस 1 ही लाख। चलो, बहुत कम कैपिटल है, परफेक्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है? पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका है, द लेफ्ट साइड राइट साइड एवरीथिंग हैज कंप्लीटेड नाइसली, ठीक है। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट की ओर बढ़ने वाले हैं। ओके, चलो, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ हमें। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट से हम शुरू करने वाले हैं फिलहाल। इट सेज फर्दर बैड डेब्ट्स 1,000 रुपीज, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फर्दर बैड डेब्ट्स दिया 1,000 रुपीज, यहाँ पे लेस करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। याद रखना अभी आप लोग को फर्दर बैड डेब्ट्स हमें कहाँ मिला है? एडजस्टमेंट में मिला है। कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स? 1,000 रुपीज। ओके, टेल मी व्हाट इज 1,53,000 माइनस 1,000 स्टूडेंट्स? इट विल कम टू 1,52,000। इजी एकदम।
चलो, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, दिख रहा है आप लोगों को फर्दर बैड डेब्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज लिख दिया, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स। बहुत ज्यादा इजी है स्टूडेंट्स ये। उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो बाद में करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्काउंट पहले हमें लिखाना है, मेक अ प्रोविजन ऑन डेटर्स। पहले ये पूरा बैड डेब्ट्स वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, सो दैट कॉल्स लेस आरडीडी। और ये आरडीडी हमें कहाँ मिला है, एडजस्टमेंट में मिला है स्टूडेंट्स 5%, तो ये हमारा न्यू न्यू आरडीडी है। ओके, 1,52,000 का 5%, अगर सो स्टूडेंट्स 1,52,000 का अगर मुझे 10% करना है तो मैं एक जीरो कम करूंगा, दैट विल कम टू हाउ मच, 15,200। और 15,200 का आधा कितना होगा, 15,200 का आधा होगा, सबसे पहले आएगा 7,600, ठीक है। चलो माइनस करूंगा स्टूडेंट 7,600, 1,52,000 में से 7,000, ओके ये मैं ओरली कर रहा हूँ, 1,52,000 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा, 1,44,000 बचेगा और 400 आ जाएगा। ओके, सिंपल, 1,52,000 में से अगर 8,000 गया तो 1,44,000 बचता है, 7,600 स्टूडेंट। सो इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे यहाँ पर 7,600 रुपीज। फाइन। अब स्टूडेंट्स ओल्ड ऑडिट तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया ही नहीं था, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको टोटल कर रहा हूँ, क्या है ये, 1,000 और 7,000, 8,000, 9,600, दैट 9,100। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स ये मेरा अमाउंट, 7, 8, 9, नहीं 7, 8, 9 तो ऐसे ही हो रहा है, 10,100 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 10,100 रुपीज। चलो, तो यहाँ पे मैंने क्या कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा मेरा बैड डेब्ट्स वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स, नाइस। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। परफेक्ट। तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंजेस करना, तो यहाँ पर 52,000 आ जाएगा, और 52,000 का 5% कितना होगा स्टूडेंट्स, 52,000 का 5% अगेन सेम, सबसे पहले 2 आएगा, 52,000 का 5% 2,000, फिर 600, 2,600 आएगा स्टूडेंट्स, 2,600। परफेक्ट, और मैं इसको लेस करने वाला हूँ 2,600 को, और 2,600 को लेस करेंगे 52,000 से 2,600, तो दैट कम्स टू 49,400 आएगा अमाउंट स्टूडेंट्स, 49,400। और स्टूडेंट्स ये अमाउंट कितना आएगा, 2,600 हमारा न्यू ऑडिट 2,600 है, दैट विल कम्स टू हाउ मच, दैट विल कम्स टू हाउ मच, देखा जाए तो 5,100, 5,100। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर दिया है, पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स वाला पार्ट, सिर्फ और सिर्फ मैं फिलहाल बैड डेब्ट्स की बात कर रहा हूँ, जिसका अमाउंट मेरा 5,100 आ गया, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, अभी हमारे और सेम एडजस्टमेंट बाकी है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स 500 है, तो मैं यहाँ पे लेस लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, यस लेस डिस्काउंट, और 500 रुपीज है स्टूडेंट्स, तो माइनस करेंगे 500 रुपीज को, 49,400 माइनस 500 कम्स टू 48,900 आ जाएगा। ये 48,900 स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, हमें यहाँ पर फाइनल अमाउंट मिल गया हमारे डेटर्स का। और सेम लेस फ्रॉम डेटर्स करेंगे और पीएनएल डेबिट में डालेंगे, देखो यहाँ पे डिस्काउंट दिया था मैंने, तो ऐड कर रहा हूँ डिस्काउंट टू डेटर्स, हमने डिस्काउंट दिया है, तो हमारे लिए ये एक तरह का नुकसान है, लॉस है, तो टोटल हो गया 900 रुपया। ओके, 4,000 प्लस 500, 400 प्लस 100, 900 आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया, अगर आप शॉर्ट में नोटिस करेंगे तो लेस फ्रॉम डेटर्स और एड टू बैड डेब्ट्स हो जाएगा बस, और पीएनएल डेबिट में, डेटर्स में से लेस करके पीएनएल डेबिट में डाला है मैंने। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5%। चलो, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5% करेंगे, यहाँ पे तो इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट 5%, और इंटरेस्ट कितना अमाउंट आएगा, 5%, 3,200 का आधा कितना होगा, 1,600 रुपया हो जाएगा स्टूडेंट, 1,600, फिर ऐड करके 33,600 हो जाएगा। परफेक्ट। और स्टूडेंट्स ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इनकम है, तो इसको पीएनएल क्रेडिट में डालेंगे, एड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 1,600 रुपया। तो चलो इनको आउटर कॉल में डालेंगे, टोटल कितना हो गया, 5,100, 5,100 बराबर 3, 4, 5,100। परफेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ आफ्टर दैट वेजेस और इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग डाला है, चलो वेजेस तो इधर ऐड करेंगे, बच्चे लोग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग, वेजेस को भी ऐड करेंगे और इंटरेस्ट में भी ऐड करेंगे, नाइस। चलो वेजेस का कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स, वेजेस का अमाउंट है 100 रुपया, तो दैट विल कम टू हाउ मच, 2,500 हो जाएगा। और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट में अमाउंट है 200 रुपया, 200 रुपया, तो 1,000 प्लस 200 विल कम टू 1,200। और दोनों का सेकंड फ्रैक्शन कहाँ डालेंगे, करंट लायबिलिटी हमारे लिए, क्यों करंट लायबिलिटी है, क्योंकि ये वो पैसा है जो हमें पे करना बाकी है स्टूडेंट्स, वेजेस और इंटरेस्ट, कितना बाकी है, वेजेस का 100 रुपया और इंटरेस्ट का 200 रुपया हमारा पे करना बाकी है, दैट विल कम टू हाउ मच, टोटल हो जाएगा 300 रुपया।
परफेक्ट। चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट डेप्रिशिएट करना है मोटर कार एट द रेट 5%, सब कुछ 5% ही है यार, लेस। चलो डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, यहाँ पे पर एनम भी लिख रहा हूँ मैं इसमें। 2,50,000, 25,000 का आधा कितना होता है, 1250, 25,000 का आधा, तो डेट विल कम टू 23,750। नाइस स्टूडेंट्स, अब सेकंड इफेक्ट डालेंगे, डेप्रिसिएशन था 1250, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, एक दो लाइन और छोड़ देता हूँ, हमें लाइन की जरूरत होगी यहाँ पर। ओके, यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार और अमाउंट आएगा 1250। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, मोटर कार का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक है 32,500। चलो क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड 32,500। और यहाँ भी लिखेंगे स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक 32,500। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में डाल दिया 32,500। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम हो चुका है कंप्लीट एक तरह से, और ये बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम क्या करेंगे, सबको स्टूडेंट्स टैली करने की और बढ़ने वाले हैं, सबको क्या करने वाले हैं, टैली करेंगे। चलो तो लेट मी जस्ट चेक विच साइड इज हेवियर आई फील। अब हाँ तो स्टूडेंट हमने क्या कंप्लीट कर दिया, पूरा का पूरा सम कंप्लीट कर दिया इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट, और कोई हिडन एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा है मुझे फिलहाल। ठीक है, चलो तो मेरे पास यहाँ पे पेन और पेपर है स्टूडेंट्स, मैं कैलकुलेट करने वाला अच्छे से। 2,48,000 और 32, 52, 62 नहीं 48 ना, तो 58, 68, 78 और 80, तो 2,80,500 है। ये मुझे क्रेडिट हैवी लग रहा है। चलो 2,80,500 है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको माइनस करके देखेंगे क्या अमाउंट आता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,80,500, तो मैंने लिख दिया 2,80,500। ठीक है, अब माइनस क्या करना है इसमें से, ये एक 50 है, ओ हो 50 और 1,45 और 1,49, 1,00,000, ये तो एग्जैक्ट 1,50,000 हो ही रहा है। तो 2 लाख हो गया, 2,02,500, बराबर, ये 2,02,500, तो 0,00, 78,000। तो स्टूडेंट्स मेरा अमाउंट आ रहा है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 78,000 अमाउंट आ रहा है स्टूडेंट्स। और ये 78,000 मेरा क्या है, कैलकुलेशन काफी इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, ठीक है 70। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, जो ट्रेडिंग में डेबिट में उसको हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 78,000। चलो नाइस। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, अब इसको कंप्लीट करने वाले हम लोग। अगेन मुझे क्रेडिट साइड ही हैवी लग रहा है स्टूडेंट, तो 78 और 5 कितना होता है, 83,500 लग रहा है। चलो 80,500, तो यहाँ भी लिखेंगे हम 83,500 रुपीज। परफेक्ट, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, सारे के सारे अमाउंट को प्लस करना होगा डेबिट साइड को। लेट मी जस्ट राइट ऑन योर ओन, ऑन माय ओन। 4,500 और 900, तो 4,500 ये कितना है, ये टोटल 6 है, तो 10,500, 10,500, 11, 12, 13, 13,600। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो मैंने ओरली कर दिया 13,600। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 4,500 है, और 4,500 और 6 कितना होता है, 10,500, 11, 12, 13, और ये 13,600। परफेक्ट, 13,600 हो गया। अब स्टूडेंट इसके आगे बढ़ेंगे। ये कितना है, 1,640 लिख रहा हूँ, 1,640। चलो ठीक है, 500, ये 1,000 हो गया, 2,250, 2,250, तो 0, 9, ये 6 से 12, 12 प्लस 2, 14, 1 कैरी, 4, 5, 7, 17,490। तो 75,000 माइनस क्या आएगा स्टूडेंट्स 17,490, 0, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो 5, और 4, 14 में से 7 गया तो 7, 57,500। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स, तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरा डेबिट साइड का टोटल 17,490 आ रहा है, वो तो मुझे लग रहा है बराबर होगा। अब मुझे टोटल कितना है, 83,500 मेरा पीएनएल का क्रेडिट का टोटल है। 83,500 में से मैं माइनस करूंगा 17,490। चलो तो 0, 10 में से 9 गया तो 1, 4 में से 4 गया तो 0। अब 13 में से 7 जाएगा स्टूडेंट्स, कितना बचेगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6, और 7 में से 1 गया तो 66,010 आ रहा है, 66,010। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 66,010। और बच्चे लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
चलो यहाँ से स्टूडेंट अभी हम कहाँ जाएंगे, कैपिटल में जाने वाले हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऐड नेट प्रॉफिट। ओके, और प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट, अभी जस्ट हमने देखा था 66,010। परफेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 1,66,010। चलो तो अभी 1,66,010 हो चुका है हमारा। ये कितना है 1,25,000, तो 1,25,000 और 6 कितना होगा 1,31,000। और ये कितना है 340। ओके चलो टोटल करेंगे 053 350 आ रहा है पीछे, 79 1 लाख नहीं 2 लाख 2,97,350। चलो तो 2,97,350। अब मुझे चेक करना है क्या मेरा असेट साइड भी राइट है या नहीं है, मुझे चेक करना है सिर्फ। चलो तो ये मेरा मोटा कार है 23,750, सबसे पहले लिख रहा हूँ 23,750। ओके फिर है 33,600, सब खतरनाक अमाउंट 33,600 है। 77,800 77,800 है। ओके 60,800 किसी को भी साथ में प्लस भी नहीं कर पा रहा हूँ। 48,900 और लास्ट में है 52,500। चलो 52,500 किसी को तो साथ कर पाए। सबसे पहले 0 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फिर 5 है सेकंड डिजिट में, 13 और 8 21 29 38 और 5 43 4 कैरी। ओके 7 10 17 और 8 25 27। ओके 2 कैरी 4 5 7 7 और 7 14 20 29। यस स्टूडेंट्स एग्जैक्टली आ रहा है 29,7350 ओके। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग चेक कर सकते हो 2,97,350। और यहाँ पे हमारा सम स्टूडेंट्स क्या हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ऐसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है दैट आई एम इन द लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा फोटो डाल दूंगा, आंसर का भी फोटो, क्वेश्चन का भी फोटो। सो इफ यू स्टक समवेयर यू कैन, एंड आपको ब्लर लग रहा है वीडियो तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हो प्रॉपरली आंसर्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स प्लीज आप कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वी आर रनिंग सम ऑनलाइन बैचेस for CBSE section 11th and 12th both. So if you are looking out for such classes, please let us know. Thank you so much students. Please ज़्यादा subscribe कर लेना and hit the like button or share it with your friends and comment something. Let me know exactly if the videos and the playlist is being helpful or not. Thank you बच्चे लोग. It was nice having all of you. Bye bye, Dada. Take care.